Hi, thank you so much for clicking on the video. I hope you are doing perfectly fine today. Let's do something different today. I am going to attempt motovlog with my Sony ZV-E10 mirrorless camera. I think I have never seen a video where someone used a mirrorless camera for motovlogging. Let's do that today. I have this selfie stick and this camera and I do not have any other mount. Neither I have a suction mount which I can use on the fuel tank of my Hunter 350, nor I have a handlebar mount. You must be wondering why I am using my mirrorless camera that costs around 90,000 rupees and not using an action cam which costs around 30 to 40,000 rupees. Yeah, the thing is that I do not have an action cam right now. I'll be buying it later. So I'm going to mount this camera on the selfie stick and also I'll be fastening it on my chest. So I have this belt, I'll be fastening it on my chest right here. And I will just slide it right here for the perfect POV shot. When I'll be sitting on my bike like this will give me perfect POV. And yeah, you must be wondering why I have mounted this on my chest, so not on the helmet. First of all, I could not found any reliable or strong helmet mount which can bear the weight of a mirrorless camera like Sony ZV-E10, and also it is highly unstable if I mount it on the helmet itself. So this is the best way. Here it will not shake much because I'll be keeping my body stable. It will give me better stability because this camera does not have any in-body stabilization. It only has digital stabilization. And also if I apply the stabilization, which will crop into the field of view that is already very shorter, as I am using the stock lens which has the minimum focal length of 16 mm, that is not very wide. Yeah, I should be using 10 or 11 mm, but I don't have that also. So this is all that I have. And yeah, one more very important thing is this ND filter or any lens protector, because the lens of a mirrorless camera is quite big. If any small stone or even dirt can strike the lens, it can get cracked or may get scratches. So always install an ND filter or mirrorless camera and protect your lens. So the lens is protected, but what about your own safety? Always wear riding gear whenever you are going for a ride, whether it is a short one or you are going for a tour. So let's go and hit the highway now, and you be the judge of the picture quality, of the motion blur, and of the overall focus area. Because in a motovlog, we need a wider focus area so we can see the main handlebar of our bike and also the sky and entire road and everything. So which gives you a mesmerizing view. So see you on the highway. Let's go. So it's around 7 p.m. and welcome to the vlog. Guys, first time in my life I am recording a moto vlog, let alone with a mirrorless camera. I am recording the first vlog of my life like this. The POV shot I have never recorded before and I don't know कि कैसा व्यू आ रहा होगा, अभी तो घर जाके ही पता चलेगा. Currently I have not made any changes to the settings. I am using intelligent auto video recording और घर जाकर देखूँगा मैं कैसा व्यू आ रहा है. तो एंजॉय कीजिए आप व्लॉग. सो टेल मी इन द कमेंट. अभी मुझे नहीं पता है कैसा व्यू आ रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्यू विद द इंटेलिजेंट ऑटो सेटिंग्स, एंड आई हैव नॉट डन एनी चेंजेस. So guys, finally I am at home, and after looking at the video I am really disappointed because all the focus is on the bike itself, on the meter, and nothing is clearly visible in front. Everything is in blur, and motovlogging, we never want this. We always want कि जो वाइड एंगल फोकस होना चाहिए और सामने जितना भी विजन है वो पूरा का पूरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए. तो दिस इज़ नॉट गुड. आई विल हैव टू अटेम्प्ट अगैन. So I think aperture settings I need to change. So the bigger the aperture, the bigger the focus. So I'll try to set it on f22 and try to record it again. We'll start again early morning tomorrow. See you.
कल मैंने व्लॉग शूट किया था, उसमें मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने अपर्चर प्रायोरिटी सेट नहीं की थी, तो वो इतनी ख़तरनाक बारिश हुई है कि चारों तरफ बारिश ही बारिश हुई है कि पानी भर गया है भाई। क्या हो रहा है ये यार, आज तो मेरी धुली धुलाई बाइक का कांड हो जाएगा। जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग चेक करी है उसमें जो फोकस है वो स्टिल इस एरिया में ज़्यादा है और फ्रंट में कम है, तो मैंने अभी जो अपर्चर है वो f22 कर दिया है। सो आई होप कि वो वाइड एरिया को शूट करेगा, देखते हैं कि कैसा आता है। अभी मुझ में कहीं बाकी। मोटो व्लॉगर्स और बाइकर्स हम लोग गाना गाए बिना तो रह नहीं सकते, पर यार गाना गा भी नहीं सकते, जब गाना गाते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ती है, वरना कंपनियां आ जाएंगी, लाओ बेटा पैसे दो हमें, आपने हमारा गाना कैसे यूज़ कर लिया अपने व्लॉग में, जो भी चिल्लर तुम कमा रहे हो उसके आधे चिल्लर हमें दे दो। खैर अभी तो हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, नील बटे सन्नाटा। ओके, नाउ वी विल चेक अगेन कि कैसी रिकॉर्डिंग हुई है। अभी देखकर मैंने चेक किया तो फोकस काफ़ी ठीक हो गया है और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। बस थोड़ा सा लेंस पर दाग लग गए हैं, बारिश की वजह से छींटे पड़ गए थे, तो हो सकता है कि वो आपको दिखाई देंगे। और मैंने अपना जो माइक है वो पीछे छोटे से बैकपैक में रखा हुआ है, तो आप बताइए कैसा साउंड आ रहा है। अभी हवा से थोड़ा थोड़ा बैग हिल भी रहा है, तो हो सकता है कि विंड बफेटिंग आएगी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ अजीब सी आ सकती है। बट आप बताइए व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है आपको हाईवे हमारा। दिस इज़ द रिंग रोड, इट इज़ अ सर्कुलर रोड विच इज़ outside the main city and connects, and you can use it to not entering in the city and avoiding the traffic and crossing the city. It is really really important. It connects with Lucknow Expressway and Yamuna Expressway, and also with Fatehabad Road near the Taj Mahal. So it is really important and crucial connection road of Agra. So when you come from Lucknow or Delhi, so you always use Ring Road to reach to the iconic Taj Mahal. So you tell me कैसा साउंड आ रहा है। मुझे लगता है कि बैग बहुत हिल रहा है, तो इसकी वजह से शायद जो प्योर ऑर्गेनिक साउंड मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। तो आई विल स्टॉप नाउ एंड कीप दिस माइक इन माई बैक पॉकेट ऑफ माई पैंट, जहाँ पर उसे विंड कम लगेगी और आवाज़ बफेटिंग की कम आएगी। लेट्स सी कि फिर कैसा साउंड आएगा। सो माई फ्रेंड, यू टेल मी कि अब कैसा साउंड आ रहा है, और अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यू एन्जॉय द प्योर साउंड ऑफ हंटर 350। सो द प्योर इंजन साउंड इज़ द फर्स्ट लव ऑफ एनी मोटो ब्लॉगर।
Now I have switched off the noise cancelling mode, and I will show you how deafening can be the wind noise at 70, 80 or even at 100 kmph. So you should always wear earplugs. This is the reality. So अब मैंने नॉइज़ कैंसलिंग ऑन कर दी है एंड ऑल्सो पुट ऑन द विंड मफ. Now let's see how is the quality of sound. Audio record level is 3 on my Sony ZV-E10. तो अभी भी मुझे हेलमेट में बहुत तेज़ विंड नॉइज़ सुनाई दे रहा है. इट्स डेफनिंग. मुझे कुछ भी इंजन की आवाज़ वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है. बहुत तेज़ विंड नॉइज़ आ रहा है. सो अब मुझे नहीं पता ऑडियो कैसी रिकॉर्ड हो रही है, बाद में सुनेंगे. आई विल हैव टू अपग्रेड माई हेलमेट एंड बाय वन विद better aerodynamics and which has better padding and can reduce the wind noise. मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि लोग कैसे मोटर ब्लॉगिंग में इतना सब बोल लेते हैं. मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा. अब मुझे सच बताऊं तो हल्का हल्का डर भी लग रहा है यार, कहीं बारिश शुरू हो गई तो मेरे मिररलेस कैमरा की पुंगी बच जाएगी. मैं इसका कवर भी कैरी कर रहा हूँ साथ में. अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तुरंत मैं इसे बैग में रख दूँगा. फाइनली रिंग रोड ख़त्म हो गया है और हम पहुँच चुके हैं एग्ज़िट पॉइंट पर. पहले इन्होंने ये ओवरब्रिज खोल दिया था शमशाबाद रोड पर जाने के लिए, अब ये बंद कर दिया. मुझे तो समझ ही नहीं आता इनका क्या सीन है. सेम रोड को बना के बंद कर देते हैं फिर बंद करके खोल देते हैं. क्या चल रहा है इनका और क्या नहीं, यही जाने. बट बारिश के बाद सच में बहुत मज़ा आता है. अभी मैं अपने प्लॉट की तरफ जा रहा हूँ देखने के लिए कि उधर कैसी बारिश हुई है और हमारे अमरूद के पेड़ों में कितना पानी लग गया है. खैर बारिश तो कल आज रात को अच्छी हुई थी. चारों तरफ खेत भर चुके हैं पानी से. जून की शुरुआत हुई है एक मूसलाधार बारिश से, जिससे ये मौसम बहुत ही सुहाना और ठंडा ठंडा हो गया है. यस, आई एम लविंग इट. ये देखो ट्रक वाले भाई साहब को कहाँ चला रहा है भाई, कहाँ चला रहा है यार. ये ट्रक वाले कब सुधरेंगे यार सच में. एक ट्रक और एक रोडवेज़, इनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं. ये कभी भी किधर भी मोड़ सकते हैं. इनके बगल से तो बड़ी सावधानी से निकलना पड़ता है. अभी देखो, मैं जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट की बात हमेशा करता हूँ कि कितना ज़रूरी है. अभी मुझे कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है. बड़ी मुश्किल से काफ़ी मुझे बस से गैप रखना पड़ रहा है देखने के लिए. और ये देखो, आप कोई भी गाड़ी आ जाती है तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है. अब देखो मुझे क्लियर दिख रहा है, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, मैं आसानी से ओवरटेक कर सकता हूँ. तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें. ओवरटेक कभी भी ब्लाइंड स्पॉट में ना करें, इट कैन बी फेटल. और ऐसे जो टू वे रास्ते होते हैं, 2 लेन, इसमें बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं है और आसपास बहुत सारी पॉपुलेशन है, यहाँ तो यार बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पे कोई भी बच्चा कहीं से भी दौड़ता हुआ प्रकट हो जाता है. कोई भी बाइक वाला किसी भी गली में से निकल के आ जाता है.
तो वो बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घट सकती है। कितने सुंदर बादल लग रहे हैं, परफेक्ट। ये हुई ना बात, ये है डे, मोटो ब्लॉगिंग डे। सोनी ZV-E10 का स्टॉक लेंस यूज़ कर रहा हूँ। 16 mm मिनिमम इसकी फोकल लेंथ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा वाइड एरिया नहीं दिख रहा है। सामने के क्लाउड्स में आपको इतने अच्छे से नहीं दिखा सकता, बट जितना भी दिख रहा है अमेजिंग दिख रहा है। सो यू बी द जज एंड टेल मी, कैन मिररलेस कैमरा बी यूज्ड फॉर मोटो व्लॉगिंग? बताइए जी, कैसी हो रही है रिकॉर्डिंग? सुबह सुबह बच्चे कोचिंग जा रहे हैं और बेचारे नादान हैं अभी। इन्हें पता नहीं है कि पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पेपर होते हैं वो सब चीटिंग करके लग जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। सब जगह इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि ये देखो। अंकल जी आराम से चलाइए भाई, ऐसे लोगों से मुझे बहुत डर लगता है यार। सडन मूवमेंट कर देते हैं भाई, ना लेफ़्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, जिधर मोड़ना होता है उधर मोड़ने का मूड बना लेते हैं। अब देखो इस महाराज ने ट्रक वहाँ रुका है, कार कहाँ रुकी। कितना पॉजिटिव देखूं भाई मैं, कितना पॉजिटिव देखूं, फिर कहीं ना कहीं से मुझे नेगेटिव दिख ही जाता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुंडोल। अब मुझे नहीं पता कैसी व्लॉगिंग हो रही है, बस चल रहा है हमारा कैमरा। ये कार वाले देखो भाई कहाँ चला रहे हैं यार, भाई एक साइड ही चल लो। ये देखो ट्रक बस वाले को भाई पेल देगा क्या? रोडवेज से तो मुझे बहुत डर लगता है यार, सच में। रोडवेज वाले तो ऐसा लगता है जैसे कि इनको मर्डर का लाइसेंस मिला हुआ है। यहाँ से शुरू होता है कुंडोल का बाज़ार। सुबह 7 बजे ही पहुँच चुका हूँ मैं कुंडोल में। इतना अच्छा वेदर हो रहा था, क्या करें यार, हमारा मन कर गया मोटो व्लॉग करने का। तो भाई लोग, मज़ा आ रहा है ना व्लॉग में? कितना मज़ा आ रहा है कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, देखने के लिए कि क्या सीन है पेड़ों का और कितनी बारिश हुई है। ऐसी कैसी 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 जिंदगी। तो हम आ चुके हैं अब कंट्री रोड पर, एकदम गांव के एरिया में। ओ भाई साहब, यहाँ तक पानी भर चुका है, ये भी भर चुका है। प्लॉट तो फुल पानी से भर चुका है। वाह वाह। तो ये सीन है। पानी तो भाई बहुत भर गया है इसमें, सारा पानी बीच में इकट्ठा हो चुका है। तो सिचुएशन ऐसी है कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पे मिट्टी भरवानी पड़ेगी, वरना ये पूरा का पूरा दीवार नीचे चला जाएगा। That would be very risky. Now I'm going to switch off the noise cancellation and will give you the pure sound of Honda 350.
Unfortunately, my camera's battery died in between, so the vlog ended abruptly. Now, let me tell you the changes I have made in the video settings to record the wide angle POV. So, everything in the wide area, including the meter of my bike, the road, and the trees, were in the focus. In the video setting priority, select aperture priority and keep the aperture at the maximum. So, the wider the aperture, the better is the focus in the wider area. So it is the only thing that I have changed in my camera. Everything else, shutter speed, ISO, and everything I left undisturbed. So I really liked the way it performed. So tell me in comments कि आपको कैसा लगा Sony ZV-E10 से moto vlog. And yeah, one more thing, for recording I used DJI Mic Mini. So there is a trick, you should always do that. अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटो व्लॉग में बहुत अच्छा साउंड आए बाइक का, तो ऑलवेज कीप द माइक इन अ stable backpack, in a big backpack, and you can also keep the mic in your back pocket of the pant. I have tried putting it on the bike itself, then the sound was really loud and annoying. And yeah, so this is the thing. And one more thing I realized, if you are using both the mics of DJI Mic Mini, the noise cancelling works on both of them. You cannot keep one mic on noise cancellation or one without noise cancellation. Automatically you have to keep both the mics on noise cancellation or normal. If it was like that कि एक माइक को मैं नॉइस कैंसिलिंग पर रख पाता, उसे मैं हेलमेट में यूज़ करता,
और दूसरा जो है उसको मैं यूज़ करता अपनी बैक पॉकेट में, उसमें नॉइस कैंसिलिंग नहीं लगाता, तो बाइक का साउंड और बेटर आता और मेरी जो वॉइस है वो और क्लियर आती, तो वो मैं नहीं कर पाया, तो ये थोड़ा मुझे कमी लगी। आई थिंक नॉइस कैंसिलेशन में भी इंजन का बहुत ही प्योर साउंड आया था। और वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू कि हेलमेट में मैं कहाँ रखता हूँ अपने माइक को। सो नाउ आई विल शो यू कि मैं अपना जो DJI माइक मिनी है उसको हेलमेट में कहाँ इंस्टॉल करता हूँ यूजिंग दिस क्लिप। यू कैन सी इनसाइड द चिन ऑफ द हेलमेट ये एक प्लास्टिक की छोटी सी प्लेट है जहाँ पर मैं माइक को इंस्टॉल कर सकता हूँ, लाइक दिस। कैन यू सी? And one more thing, if you want clear sound without any wind buffet, always use this cat fur or wind muff on the mic. So when you speak, the air coming out will not disturb this. So please let me know in the comments कि आपको मेरा पहला मोटो व्लॉग अटेम्प्ट कैसा लगा, और अगर आपके पास ZV-E10 है तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे अपने मिररलेस कैमरा को मोटो व्लॉग के लिए यूज़ करने के लिए। So thank you so much for watching it. So if you really like this kind of real honest content without any fake internet drama, please subscribe to my channel and I will see you in the next video. Till then, take care and ride safe.